Hello guys, welcome to this session. Today we are going to do MCQs on the archipelago, or we can say that the islands of India in the Indian geography. So yes, if anyone is visiting the channel for the first time, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon also. So let us start our session with the first question. Your question is Andaman and Nicobar are A option is two islands in the Bay of Bengal, B option is archipelago in the Bay of Bengal, C option is archipelago in the Arabian Sea, and the last one option is two islands in the Indian Ocean. So the right answer will be option B, that is archipelago in the Bay of Bengal. And I'm sure guys that you know the difference between islands and archipelago. जो आपका island होता है, it is a piece of land in the water body which is surrounded by the water, and archipelago होता है collection of islands, right? So अंडमान एंड निकोबार क्या है? It is a collection of islands in the Bay of Bengal. And in this image you can see the location of Andaman and Nicobar with respect to the map of India. Here is the Bay of Bengal और यहाँ पर पड़ता है अंडमान एंड निकोबार, right? So now let me move to the next question. अगला क्वेश्चन है द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स A option is Andaman from the Nicobar Island, B option is Andaman from the Myanmar country, C option is India from the Sri Lanka, and D option is Lakshadweep from the Maldives. So the right answer is option A, that is 10 degree channel separates Andaman and Nicobar Island. Now in this image you can see here is the Andaman Island. Andaman Island ऊपर वाली तरफ पड़ता है और 10 degree channel, and after that जो है निकोबार आइलैंड पड़ता है, एंड बोथ दिस आइलैंड गेट सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल. आपको अच्छे से याद रखना है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइलैंड ऑफ इंडिया हैज अ वोल्केनिक ओरिजिन? ए ऑप्शन इज बेरन आइलैंड, बी ऑप्शन इज कार निकोबार, सी ऑप्शन इज लिटिल निकोबार, एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज नॉर्थ अंडमान. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बेरन आइलैंड. आपको एक और आइलैंड का नाम याद रखना है, दैट इज नारकोंडम आइलैंड. नारकोंडम एंड बेरन आइलैंड both are the volcanic island in the territory of India, right? Here you can see the location of Narcondam and Beran Island with respect to Andaman and Nicobar, right? Next question is Beran Island is situated in, your A option is in the Bay of Bengal, B is Arabian Sea, सी ऑप्शन इज मेडिटेरियन सी, एंड डी ऑप्शन इज चाइना सी. सो मैंने आपको बताया जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो पड़ता है इन द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर देखिए जो बेरन और नारकोंडम आइलैंड है वो भी किस तरफ पड़ रहे हैं, टू द ईस्ट साइड ऑफ अंडमान एंड निकोबार. इट मीन्स ये भी कहाँ पर आते हैं आपके बे ऑफ बंगाल में. इट मीन्स द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज द बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? A option is Saddle Peak, B option is Mount Thulier, C option is Mount Diavolo, and D option is Mount Koel. तो अगर आपने हिल्स एंड माउंटेन्स का जो सेशन है उसको देखा होगा तो आपने इसका आंसर राइट गेस किया होगा. इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज सैडल पीक. सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागी, दैट इज पालियन समिट, इज सिचुएटेड इन, योर ए ऑप्शन इज ग्रेट निकोबार, B option is Central Andaman, C option is Little Andaman, and D option is North Andaman. Now listen guys, जो Saddle Peak है उसको और किस नाम से जाना जाता है? So it is also at the Palian Summit. So don't get confused, right? अगर highest peak की बात की जा रही है it means Saddle Peak और Palian Summit. तो अगर अब आपको जो है एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है इसकी, राइट? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज नॉर्थ अंडमान. अब देखिए गाइस, अंडमान एंड निकोबार के भी जो है आगे छोटे छोटे जो है आइलैंड्स हैं या हम कहें पार्ट्स हैं, तो जो इस पीक के लोकेशन है वो आते हैं नॉर्थ अंडमान में. अभी हम आगे जो है फर्दर जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर मैं आपको लोकेशन बताऊंगी इन सभी नॉर्थ, लिटिल एंड ग्रेट निकोबार की या अंडमान की, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्क स्टेट सेपरेट्स विच टू कंट्रीज? ए ऑप्शन इज इंडिया एंड बांग्लादेश, बी ऑप्शन इज इंडिया एंड श्रीलंका, सी ऑप्शन इज इंडिया एंड चाइना, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंडिया एंड म्यांमार. So this question is also very important. तो इसका राइट आंसर आएगा पार्क स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, राइट? हियर आई मेंशन सम इम्पॉर्टेंट डेटा. तो देखिए जो पार्क स्टेट है इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट साइड विद द गल्फ ऑफ मन्नार इन द साउथ वेस्ट साइड, एंड दिस पार्क स्टेट एक्सटेंड बिटवीन धनुषकोडी ऑन द पंबन आइलैंड इन तमिलनाडु एंड मन्नार आइलैंड इन श्रीलंका. ओके जो स्टेट क्या होता है गाइस, ये क्या होता है, एक
नैरो जो है वाटरवे होता है विच कनेक्ट्स द टू वाटर बॉडीज, तो ये कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को विद द गल्फ ऑफ मन्नार इन द साउथ वेस्ट साइड। अब आप इस इमेज में देखिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ श्रीलंका और ये पड़ता है आपका तमिलनाडु और हम कहें रामेश्वरम। तो जो पार्क स्टेट है वो सेपरेट करती है आपकी इंडिया और श्रीलंका को एंड इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल, इस तरफ पड़ता है बे ऑफ बंगाल और ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। इन दोनों को जो क्या करता है, कनेक्ट करती है दिस स्टेट एंड सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, राइट। So next question is Adams Bridge or Ram Setu starts at A option is Dhanushkodi, B option is Mandapam, C option is Pamban and D option is Rameshwaram. So right answer is option A, that is Dhanushkodi. And this Adams Bridge is also called as Ram Setu Bridge in India and it starts as a chain of shoals from Dhanushkodi which is located at the tip of Pamban Island and this bridge ends at the Mannar Island of Sri Lanka and it separates the Gulf of Mannar from the Palk Strait. And this is made up of the limestone, right? And here you can see the image. This side is the Sri Lanka और this is the Mannar Island of Sri Lanka जिसको ये कनेक्ट करता है मनार आइलैंड को धनुषकोडी। धनुषकोडी जो पड़ता है आपका रामेश्वरम और पंबन आइलैंड पर, राइट। इट इज द धनुषकोडी इज द साउदर्न टिप ऑफ रामेश्वरम आइलैंड और पंबन आइलैंड, राइट। और ये एडम्स ब्रिज पड़ता है इन दोनों के बीच में, राइट। सो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीहरिकोटा आइलैंड इज सिचुएटेड नियर। ए ऑप्शन इज द चिल्का लेक, बी इज द एस्चुअरी ऑफ द महानदी, सी ऑप्शन इज द पुलिकट लेक and D option is the estuary of the Godavari. So the right answer is option C, that is the Pulicat Lake. आपको ये सभी को पता होगा कि श्रीहरिकोटा पड़ता है आंध्र प्रदेश में और मे बी यू नो दैट द पुलिकट जो लेक है वो भी पड़ती है आंध्र प्रदेश में, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागी। ए ऑप्शन इज 200, बी इज 240, C option is 570 and D option is 250. So the right answer will be option C, that is 572. The total number of islands is 572 and out of these 37 are inhabitant, right? Next question is where is Lakshadweep situated? A option is the Atlantic Ocean, B is the Arabian Ocean, C option is the Bay of Bengal and D option is the Pacific Ocean. So the right answer will be option B, that is Lakshadweep Island situated in the Arabian Sea. Now here you can see the location of Lakshadweep Island. आपका अंडमान निकोबार पड़ता है बे ऑफ बंगाल में टू द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया एंड जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो पड़ता है अरेबियन सी में, राइट, जो पड़ता है आपका टू द वेस्ट साउथ ऑफ इंडिया, राइट। So now next question is how many islands are there in the Lakshadweep? A option is 17, B is 27, C is 36 and D option is 47. So the right answer will be option C, that is लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड्स हैं 36 एंड अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड्स हैं 572. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इन इंडिया इज। ए ऑप्शन इज मजोली, बी ऑप्शन इज अंडमान, सी ऑप्शन इज लक्षद्वीप and D option is Salsette. So the right answer is option D, that is Salsette. And this Salsette Island is situated in the state of Maharashtra, right? And it is one of the most populous, densely populated islands in the world. And one more important point that Borivali National Park, also known as the Sanjay Gandhi National Park, वो located है आपका this Salsette Island में, right? And मुंबई को जो है 7 Island City भी कहा जाता है. And in this image you can see the location of Salsette Island, which is in Maharashtra, right? Next question is which of the following island is among the remote islands from the Indian coastline? A option is Batkal, B is Arnala, C option is Minicoy and D option is Henry. So the right answer will be option C, that is Minicoy, which is one of the most famous island. तो यहाँ पर इन आप लोकेशन में देखिए मिनिकॉय कहाँ पर पड़ता है, ये आपका केरला स्टेट है। केरला स्टेट के विद रिस्पेक्ट दिया हुआ है, ये पूरा जितने भी आइलैंड्स हैं वो आते हैं लक्षद्वीप के अंडर और जो विच आई हाईलाइटेड इन द रेड वन कलर वो है आपका मिनिकॉय आइलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग सिटी ऑफ इंडिया बिल्ट ऑन एन आइलैंड इज। ए ऑप्शन इज पणजी विच इज इन गोवा, बी ऑप्शन इज रामेश्वरम विच इज इन तमिलनाडु, सी ऑप्शन इज पोर्ट ब्लेयर विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार and D option is Mumbai. Now you have to choose the right answer. तो इसका right answer आएगा option D, that is Mumbai. Okay. Next question is Lakshadweep Island group is। A option is accumulation of coral reef, B option is soil sedimentation,
C option is accumulation of volcano substances and D option is none of these. हमने प्रीवियस देखा कि जो लक्षद्वीप जो आर्कियोलॉजी है उसमें टोटल आते हैं आपके 36 आइलैंड. सो वो किस चीज का जो है आउटकम है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज accumulation of coral reef. Next question is which of the following is a coral island? A option is New Moor, B option is Car Nicobar, C option is Andaman and D option is Lakshadweep. तो हमने previously किया that Lakshadweep Island are the outcome of accumulation of coral reefs. So the example of coral island is option D will be the right answer, that is Lakshadweep, right? Next question is Kori Creek is situated on. A option is the Gulf of Kutch, B is the Gulf of Cambay, C option is the Little Run of Kutch and the last option is the Run of Kutch. So the right answer will be option D, that is the Run of Kutch. अब listen guys, ये creek होता क्या है actually में? It is a narrow area of water that flows into the land from the any water bodies, from the sea, from the lake, from the ocean. It can be anything, right? तो अब यहाँ पर देखिए जो कोरी क्रीक है वो पड़ता है रन ऑफ कच्छ में. रन ऑफ कच्छ कहाँ आता है आपका? गुजरात में. दिस ऑल इज द लोकेशन ऑफ, ये सारा आता है आपका गुजरात का एरिया. और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पड़ता है रन ऑफ कच्छ, यहाँ पर कच्छ पड़ता है, यहाँ पर लिटिल रन ऑफ कच्छ पड़ता है. ओके, तो जो कोरी क्रीक आता है वो रन ऑफ कच्छ में पड़ता है, राइट. मैं आगे आपको इमेज में दिखाऊंगी कोरी क्रीक को, पर आप यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए. कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर पड़ता है. सो ये गुजरात में आता है. अब यहाँ पर देखिए ये पूरा जो है ना बना हुआ शेप इस तरह से, ये पूरा गुजरात का एरिया है यहाँ तक. यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ आता है और ये अरेबियन सी में पड़ता है, राइट. और यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ खंबात आता है, इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहा जाता है, राइट. ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं तो इनको याद रखिएगा. ओके, अब यहाँ पर देखिए दिस वन इज द कोरी क्रीक एंड दिस इज द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, राइट. और ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, सर क्रीक इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच टू कंट्री. तो सर क्रीक जो ये पड़ता है ये आता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, राइट. सो आप इसको भी यहाँ से याद रख सकते हो. ओके, सो लेट मी मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन. A option is the southwest India, B option is the South India, C option is the Southeast India and D option is the Eastern India near West Bengal. So the right answer is option A, that is the Southwest India. हमने प्रीवियस देखा कि जो लक्षद्वीप है, अब यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप पड़ता है टू द वेस्ट साइड. अब ये इंडिया का मैप है एंड आई होप दैट यू नो, इस यहाँ पर बोलते हैं साउथ. ये अपर वन इज द नॉर्थ साइड, दिस वन इज द वेस्ट एंड दिस इज द ईस्टर्न साइड. अब आप लक्षद्वीप को देखिए तो ये कहाँ पर पड़ रहा है, जस्ट ड्रॉ लाइन फ्रॉम द हियर एंड हियर. तो आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये आएगा आपका साउथ वेस्ट में. ओके, सो द आंसर विल बी साउथ वेस्ट. ओके, इसी तरह से अगर अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ये इसकी लोकेशन क्या आएगी, दिस साइड इज द ईस्ट साइड और ये पड़ रहा है इंडिया के साउथ में, टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, राइट. Next question is which of the following Indian islands is between the India and Sri Lanka? A option is Elephanta, B is Nicobar, C option is Rameshwaram, D option is Salsette. So Salsette is in Mumbai and Nicobar is Andaman and Nicobar side. So अगर आपने जो है एडम्स ब्रिज वाला वो क्वेश्चन अच्छे से किया होगा, वहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, देन यू एबल टू गिव द राइट आंसर. तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज रामेश्वरम आइलैंड. और इसको जो है पंबन आइलैंड भी कहा जाता है, जो आपका आता है तमिलनाडु में, राइट. तो ये आइलैंड पड़ता है इन दोनों के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार. ए ऑप्शन इज श्रीलंका, बी इज जावा, सी ऑप्शन इज बोर्नियो एंड डी ऑप्शन इज सुमत्रा. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सुमत्रा. सुमत्रा इज वन ऑफ द फेमस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, राइट. सो आप इसको याद रखिएगा. जो ग्रेट निकोबार बिल्कुल साउथ ऑफ द निकोबार आइलैंड के पड़ता है, तो उसकी क्लोज वन पड़ता है सुमत्रा आइलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following islands of the Andaman and Nicobar Islands contain the only known examples of mud volcanoes in India called locally as Jalki. A option is Baratang Island, B option is Beran Island, C option is Car Nicobar and D option is Havelock Island. So the right answer will be option A, that is Baratang Island. Baratang Island is the example of mud volcanoes in India. Okay. Next question is Duncan Passage separates. A option is Rutland Islands and the Little Andaman, B option is Andaman and Nicobar, C option is North and South Andaman, D option is South Andaman and the Little Andaman.
So the right answer will be option D, that is South Andaman and Little Andaman. अब लिसन गाइस, यहाँ पर ऑप्शन ए भी आपका जो है करेक्ट हो सकता था, राइट। वैसे एग्जाम में आपको इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया होगा या बोथ दिया होगा। अब यहाँ पर आप इमेज में देखिए, आई होप दैट द टेक्स्ट इज विजिबल टू यू। तो जो ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, ये है आपका डंकन पासेज, जो पड़ता है आपका लिटिल अंडमान और जो है साउथ अंडमान के बीच में। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि अगर हम अंडमान या निकोबार की बात करें तो उसमें अलग अलग आइलैंड्स हैं या अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो सैडल पीक है, जिसको पालियन समिट भी कहा जाता है, वो पड़ता है नॉर्थ अंडमान में। अब आप यहाँ पर देखिए नॉर्थ अंडमान की लोकेशन, दिस वन इज द नॉर्थ अंडमान। फिर आता है आपका मिडल अंडमान, देन आता है आपका साउथ अंडमान, जिसको कि लोअर अंडमान भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्यों बताया कि यहाँ पर जो है रूटलेट आइलैंड एंड लिटिल अंडमान के बीच में भी जो है डंकन पासेज का जो है ये आंसर सही हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर पड़ता है आपका दिस रूटलेट आइलैंड और यहाँ पर पड़ रहा है लिटिल अंडमान। तो ऑप्शन ये भी राइट हो सकता था, ओके। पर एग्जाम में इस तरह से नहीं होगा, आपको एक ही ऑप्शन दिया होगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए अच्छे से कि नॉर्थ अंडमान कहाँ पे पड़ रहा है, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, एंड द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर, राइट। दिस हियर इज द पोर्ट ब्लेयर। अब आप यहाँ पर आइए निकोबार। अब निकोबार में देखिए, ये मैं आपको प्रीवियस करा चुकी, जो अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है वो है 10 डिग्री चैनल। दिस इज द 10 डिग्री चैनल एंड दिस इज द डंकन पासेज, जो सेपरेट करता है आपका साउथ एंड द लिटिल अंडमान को, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए निकोबार आइलैंड को, तो सबसे बिल्कुल नॉर्थ में, मतलब निकोबार आइलैंड के नॉर्थ में पड़ता है कार निकोबार और बिल्कुल साउथ में पड़ता है ग्रेट निकोबार, राइट। इसको अच्छे से याद रखिएगा, अभी आगे जो है हम क्वेश्चन करेंगे। और बीच में पड़ता है लिटिल निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड द ग्रेट निकोबार, ओके। थोड़ा सा अपने माइंड में जो है इमेज बना के चलिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चैनल दैट सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालिकी अटॉल is known as which of the following? A option is 10 degree channel, B is 9 degree channel, C option is Coco channel and D option is Kardiva channel. So the right answer will be option B, that is 9 degree channel. अब देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो है मेजरली आपको देखने को मिलेगा that the channel which separates लक्षद्वीप and मिनिकॉय is the 9 degree channel, okay? तो हो सकता है आपको जो है यहाँ पर जो है मिनिकॉय ना देके जो है कोई और आइलैंड दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मालिकी एटॉल या फिर कल्पेनी दिया हो या सोहेली पर दिया हो, तो तब भी राइट आंसर आएगा 9 डिग्री चैनल, ओके। बिकॉज 9 डिग्री चैनल इज अ चैनल इन द इंडियन ओशन बिटवीन द लेकेडेज आइलैंड ऑफ कल्पेनी, सोहेली पर एंड द मालिकी एटॉल, एंड दीज टू सब ग्रुप्स ऑफ आइलैंड टुगेदर फॉर्म द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। अब यहाँ पर आप इमेज में देखिए, मैंने आपको बताया जो लक्षद्वीप है वो पड़ता है आपका साउथ वेस्ट साइड में, ओके। तो यहाँ पर देखिए कावर्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, जो यहाँ पर है। अब ये पड़ता है आपका 9 डिग्री चैनल एंड दिस वन इज द मिनिकॉय, राइट। जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में पड़ता है वो है 9 डिग्री चैनल। पर हो सकता है आपको जो है ऑप्शन में ये सोहेली पर यहाँ पर पड़ता है, कल्पेनी यहाँ पर पड़ता है, तो मिनिकॉय ना लाके आपको ये आइलैंड दिए हो, तब भी आंसर क्या आएगा 9 डिग्री चैनल। तो थोड़ा सा जो है जस्ट इस इमेज को अपने माइंड में प्रिंट कर लीजिए, धीरे धीरे हो जाता है गाइस। जब आप ज़्यादा टाइम रिवीजन करोगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है आपको याद हो जाएंगी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ए ऑप्शन इज इंडिया एंड श्रीलंका, बी ऑप्शन इज मिनिकॉय एंड मालदीव, सी ऑप्शन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and D option is Indira Point from Indonesia. So the right answer is option B, that is Minicoy and Maldives separated from each other by the 8 degree channel. Okay. Now अब आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, मैंने बताया साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, और लक्षद्वीप के जो है थोड़ा सा साउथ में आके आपको मिलेगा मालदीव्स, and these two, that is Lakshadweep and Maldives, or we can say India and Maldives, get separated by the 8 degree channel, okay. So now let me move further. Next question is which separates India from Myanmar? A option is 10 degree channel, B is Coco channel, C option is Duncan passage and D option is Manner Strait. अब देखिए दो जो चैनल या स्ट्रेट है वो तो हम कर चुके, दैट इज 10 डिग्री जो अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है, एंड डंकन पासेज जो सेपरेट करता है आपका साउथ अंडमान एंड द लिटिल अंडमान को। अब बचे दो, दैट इज कोको चैनल एंड मैनर स्ट्रेट।
So the right answer will be option B, that is कोको चैनल, जो पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में कौन पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार। अब आप इस इमेज को देखिए, हेयर इज योर अंडमान एंड निकोबार, ये जो राउंड किया हुआ है दिस वन इज द अंडमान एंड निकोबार, और इधर पड़ता है आपका इंडिया। और ये जो ऑरेंज सा है ये ऊपर वाली तरफ, दिस ये तो इंडोनेशिया पड़ता है, दिस वन इज द म्यांमार। तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है ना गाइस, अब देखिए यहाँ पर कोको आइलैंड भी आपको देखने को मिल रहा है जो पड़ता है म्यांमार में। तो म्यांमार और इंडिया को कहें या अंडमान या म्यांमार के बीच का जो चैनल है उसको कहा जाता है कोको चैनल। ओके, अभी हम जो है इस सेशन के एंड में इन सभी जो है स्टेट्स को या चैनल को रिवाइज करेंगे एक बार गाइस। तो मे भी आपको अभी जो है थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट एट द एंड ऑफ सेशन एवरीथिंग विल गेट क्लियर। सो आप प्लीज सेशन को पूरा देखिएगा। So the next question is, which of the following channels or state is located between the Great Nicobar Island and the Indonesia's Sumatra Island? A option is Great Channel, B option is 10 degree channel, C option is 9 degree channel and D option is Park Strait। अब देखिए जो लास्ट वन के 3 ऑप्शंस हैं उन सभी पे हम क्वेश्चन कर चुके, 10 डिग्री, 9 डिग्री एंड पार्क स्टेट। अब ओनली एक ऑप्शन बचता है, तो आई होप कि आपने सही आंसर चूज किया होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेट चैनल। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, द ग्रेट चैनल इज लोकेटेड 6 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज द 6 डिग्री चैनल, राइट। तो हो सकता है ग्रेट चैनल की जगह जो है 6 डिग्री चैनल दिया होगा वो एग्जाम में, सो इट विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर इमेज में आप देखिए, दिस इज द अंडमान एंड निकोबार, और इसके थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया। और मैंने जब आपको प्रीवियस में इमेज कराई निकोबार आइलैंड की, तो मैंने वहां पर आपको बताया कि जो बिल्कुल साउथ में पड़ता है वो पड़ता है आपका कार निकोबार। ओके, सो दिस ग्रेट चैनल और वी कैन से 6 डिग्री चैनल इज बिटवीन द कार निकोबार और वी कैन से निकोबार आइलैंड एंड द इंडोनेशिया कंट्री, राइट। सो इस तरह से जो है आपको याद रखनी है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन इज, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Your A option is Maldives, B option is Madagascar, C option is Lakshadweep and D option is Sumatra. So the right answer will be option B, that is Madagascar Island. Madagascar Island is one of the, or we can say it is the 4th largest island in the world after Greenland. अगर largest island की बात करें world में, so वो है Greenland, okay? So it is the 4th largest after Greenland, New Guinea and the Borneo. और Madagascar आपका पड़ता है, it is an island country lying off the southern eastern coast of Africa। और इसका एरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है, बट एरिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको बस इतना याद रखना है जो बिगेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशन में वो है मेडागास्कर। या कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मेडागास्कर आइलैंड है वो कौन से ओशन में पड़ता है, तो आपको याद रखना है इंडियन ओशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। अब मैंने आपको प्रीवियस में बताया जो इंडिया में वोल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड हैं वो है बेरन आइलैंड एंड द नारकोंडम आइलैंड। आपको 2 आइलैंड याद रखने हैं। अब यहाँ पर आप जो है ऑप्शंस को रीड आउट कीजिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रीयूनियन आइलैंड, बी ऑप्शन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सी ऑप्शन इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड डी ऑप्शन इज मालदीव। सो यहाँ पर जो है आपको वो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रीयूनियन आइलैंड, जो आता है फ्रांस कंट्री के अंडर। ओके, सो नाउ लेट वी रिवाइज आवर सेशन। सो थोड़ा सा अटेंटिव होके गाइस सेशन को देखिएगा। तो पहले देखिए मैंने आपको बताया अंडमान एंड निकोबार, इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आर्किपेलॉजी एयर, यहाँ पर जो है ये रेक्टेंगुलर सा शेप बना हुआ है, यहाँ पर है आपका अंडमान एंड निकोबार जो पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, और वी कैन सी टू द साउथ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया, राइट। तो इन दोनों आइलैंड को जो सेपरेट करता है वो है 10 डिग्री चैनल। ओके, फिर आइए अंडमान आइलैंड में, यहाँ पर मैंने आपको बताया बिल्कुल ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल नॉर्थ वाली साइड पड़ेगा नॉर्थ अंडमान, देन जो है मिडल अंडमान और उसके नीचे आएगा लोअर अंडमान और द साउथ अंडमान, राइट। फिर उसके नीचे आएगा लिटिल अंडमान। सो जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो सेपरेट करता है वो है डंकन पासेस। ओके, सो आप इसको याद रखिएगा। फिर आ जाइए निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताई, जो सैडल पीक है वो पड़ती है आपकी नॉर्थ अंडमान में, एंड सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ओके, अब आइए निकोबार आइलैंड में। तो जो निकोबार आइलैंड में जो है सबसे ऊपर आता है आपका कार निकोबार, देन लिटिल निकोबार एंड सबसे साउथ में आएगा थोड़ा सा ग्रेट निकोबार। ओके, तो अगर हम बात करें इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, या बोलें
निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया के बीच में, या बोले कार निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल आता है उसको कहा जाता है ग्रेट चैनल, और ग्रेट चैनल को है जो है 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आइए, अंडमान एंड निकोबार ये है और यहाँ पर पड़ता है आपका म्यांमार कंट्री। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कोको आइलैंड जो पड़ता है म्यांमार में, और तो अगर हम बात करें इंडिया को और म्यांमार को, या अंडमान एंड निकोबार और म्यांमार के बीच में जो चैनल पड़ता है उसको कहा जाता है कोको चैनल, राइट। तो यहाँ का आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। अब आप यहाँ पर आइए, दिस वन इज द श्रीलंका एंड हियर इज द तमिलनाडु, और इस तरह पड़ता है आपका केरला। तो जो इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करती है वो कौन सी स्टेट है आपकी, वो है पाक स्टेट, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जो एडम्स ब्रिज है जिसको राम सेतु ब्रिज भी कहा जाता है मोस्ट पॉपुलरली, वो आपका पड़ता है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, और या हम कहें पंबन आइलैंड और रामेश्वरम आइलैंड एंड द मन्नार आइलैंड ऑफ श्रीलंका, राइट। तो नाउ यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होगी। अब आप यहाँ पर आइए दिस वन साइड अरेबियन सी की तरफ, तो लक्षद्वीप आपका पड़ता है अरेबियन सी में, ओके। और वी कैन से दैट टू द साउथ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, राइट, साउथ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में पड़ता है लक्षद्वीप, राइट। तो जो लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में जो चैनल है वो है आपका 8 डिग्री चैनल, राइट। अब मैंने आपको बताया लक्षद्वीप में भी काफी छोटे 36 आइलैंड्स हैं टोटल, तो जो मिनिकॉय है ना वो साउथ में पड़ता है, राइट। तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को जो सेपरेट करता है वो है 9 डिग्री चैनल, राइट, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप गाइस दैट की सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली क्लियर हो ही गई हैं। तो इसको अच्छे से 1-2 बार जो है रिवाइज कीजिएगा। और मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ कही है कि जियोग्राफी को आप जब भी पढ़ो तो जो है विद द हेल्प ऑफ मैप स्टडी कीजिएगा इस, क्योंकि इससे आपको जियोग्राफी जो है बहुत इंटरेस्टिंग और इजी बन रहेगा। आपको चीज़ें जो है क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। So I hope that you love the session guys. So please give a one thumbs up to video. We will meet soon in the next session guys. Till then bye bye and take care.